Welcome students to the YouTube channel of learning, and this is your Daniel sir back with another video. Students, we are continuing our series on cell division. Yes, जिन्होंने मेरा वीडियोस देखा है cell division का उन्हें पता है that today we are going to do the part 4 of cell division. Students, सबसे पहले we have done our interface का वीडियो, cell division का वीडियो, cytokinesis का वीडियो है ना, mitosis हम लोग पढ़े थे. Today we are going to begin with meiosis. Right, today we are going to rather introduce meiosis. My dear students, मैंने क्या कहा था कि mitosis और meiosis में क्या difference होता है. Mitosis is called equational division, wherein a single diploid mother cell gives rise to two diploid daughter cells, right? So there is an equation, there is a parity between the number of chromosomes between the mother cell and the daughter cell. But if you talk about meiosis, in meiosis a single diploid mother cell gives rise to four haploid daughter cells, right? So the mother cell is diploid and the daughter cells are haploid, right? So that is why meiosis is called reduction division. Why? Because there is a reduction in the number of chromosomes, right? Students, you will please remember that equation division or reduction division is always on the basis of the number of chromosomes. If the number of chromosomes between the mother cell and the daughter cell is same, then we will call it equation division. Right? If the number of chromosomes between the mother cell and the daughter cell is reduced by half, we'll call it reduction division. Right? The word reduction and equation is on the basis of the number of chromosomes and not on the amount of DNA. Right? Because meiosis में बहुत सारे students को difficulty होता है कि DNA तो reduce हो रहा है लेकिन उसको reduction क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना? We'll talk about all that. सबसे पहले तो let's understand कि जो meiosis होता है यहाँ पे a single diploid mother cell, as you can see, a single diploid mother cell is giving rise to four daughter cells, and these four daughter cells, all of them, if you will see over here, all of them are haploid. ये भी haploid, 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 right? But the mother cell was diploid. Also, my dear students, you will also notice one thing कि यहाँ पे meiosis takes place in two steps, meiosis 1 and meiosis 2. ये माइटोसिस की तरह नहीं है. माइटोसिस में क्या होता था कि सिंगल माइटोसिस शुरू हुआ, उसका कार्योकाइनेसिस शुरू हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस एंड द मियोसिस इज डन. यहाँ पे ऐसा नहीं होता, राइट? यहाँ पे दो सक्सेसिव सेल डिवीजन है. पहला सेल डिवीजन करके दो डॉटर सेल्स मिलता है, फिर वो दो डॉटर सेल्स को मदर सेल्स की तरह ट्रीट किया जाता है और फिर वो दोनों का दो दो सेल्स मिलता है. तो अल्टीमेटली चार डॉटर सेल्स मिलता है ना? बट वी शुड रिमेंबर मियोसिस 1 करके दो डॉटर सेल्स मिलता है, फिर वो दो डॉटर सेल्स जो मियोसिस 1 का मिला है, दे आर ट्रीटेड एज द मदर सेल्स फॉर मियोसिस 2, राइट? उसके बाद मियोसिस 2 को, जब मियोसिस 2 का कंप्लीशन होता है, देन एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 वी गेट फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. अब ये अंडरस्टैंडिंग, आज हम लोग सिर्फ इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे. तो आइए ये वाला चार्ट को समझते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस चार्ट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एवरीबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर चार्ट, राइट? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड यू गाइज आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले आप लोग देखिए, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है कि मियोसिस शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ अ मदर सेल, ऑब्वियसली, है ना? कोई भी इवेंट तो ऐसे ही नहीं शुरू हो सकता. यू नीड अ मदर सेल. सो दिस इज योर मदर सेल एंड द मदर सेल इज 2n is equals to 4 and 2c, right? 2c का मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है, राइट? 2n is equals to 4 है और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 2c है ना? ना तो क्रोमोसोम्स अभी तक कुछ हुआ है, ना तो डीएनए को अभी तक अनटच्ड है. द सेल इज इन G1 फेज. तुमको पता है ना, लॉन्गेस्ट इंटरफेस का लॉन्गेस्ट इज G1, उसमें सेल ग्रो कर रहा है. आप लोग को हम इवेंट्स ऑलरेडी बता चुके हैं. अभी क्या होता है, ये एस फेज में जाएगा. एस फेज में क्या होता है आप लोग को पता है, द अमाउंट ऑफ डीएनए जस्ट गेट्स डबल्ड, है ना? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एवरीथिंग, क्रोमोसोम नंबर से लेके एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर है? तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, इफ यू विल सी दैट द अमाउंट ऑफ डीएनए हैज गॉटन डबल्ड, है ना? 2c से कितना हो गया, देखिए 2c से इट हैज बिकम 4c, हाँ कि ना? राइट? 2c से इट हैज बिकम 4c, करेक्ट? कहां पे? एस फेज में, राइट? अब एस फेज से जब वो G2 में जाएगा, G2 में नो चेंज हैपेंस. ये 4c का 4c रहेगा, 2n is equals to 4 का 2n is equals to 4 रहेगा. तो इंटरफेज में अगर हम इन टोटालिटी देखें तो क्या हुआ है, सिर्फ डीएनए डबल हुआ है, बाद बाकी एवरीथिंग इज रिमेनिंग द सेम. Are we understanding? और वो भी डीएनए का डबलिंग कहां हुआ है? डीएनए का डबलिंग हुआ है एस फेज के अंदर.
क्लियर। उसके बाद सेल पहुंचता है मियोसिस 1 में, है ना, मियोसिस 1 में। आइए देखते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है, देखिए कौन सा सेल पहुंचा है भाई, एक ऐसा सेल पहुंचा है, एक ऐसा सेल पहुंचा है जो 2n इज इक्वल टू 4 है और 4c है। देखिए एकदम ये वाला, राइट, यही वाला सेल तो यहां पे पहुंचा है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, देखिए हम आपको मेन चीज बता दें कि मियोसिस 1 में क्या होता है, द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ बट द डीएनए रिमेन्स सेम, right? Chromosome number is becoming half, but the amount of DNA is remaining same as the mother cell. Who is the mother cell? This is the mother cell. What is the amount of DNA in the mother cell? 2c. What is the number of chromosomes in the mother cell? 2n is equals to 4. तो यहाँ पे क्या होगा? Ultimately, at the end of meiosis 1, if you will see, these are the daughter cells of meiosis 1. At the end of meiosis 1, you will see two cells wherein n is equals to 2 and 2c amount of DNA. n is equals to 2 and 2c amount of DNA. तो 2c और यहाँ भी 2c सेम सेम है, इसलिए मैंने लिखा है the DNA remains same, right? But n is equals to 2, यहाँ पे कितना था, 2n is equals to 4, तो इसीलिए the amount of the number of chromosomes has reduced. और मैंने क्या कहा था कि किसी भी सेल को, किसी भी सेल डिवीजन को हम लोग रिडक्शन डिवीजन या इक्वेशन डिवीजन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। क्लियर? अमाउंट ऑफ डीएनए से कोई मतलब हम लोग को लेना देना नहीं है, वो सम्स में काम आएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, है ना। यहां पे आप लोग को सिर्फ नोटिस करना है, इसीलिए मियोसिस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। Why is it called ये reduction division? Because the number of chromosomes is becoming half. मैंने कहा ना, number of chromosomes को हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। बेसिकली यहाँ पे मियोसिस 1 है तो इसका कार्योकाइनेसिस को भी क्या बोलेंगे, कार्योकाइनेसिस 1, राइट। और उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस 1। कार्योकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब ये अंडरस्टैंडिंग, ये प्रोफेज 1 में हम एस्टेरिस्क क्यों दिए, हम बताएंगे, इज द लॉन्गेस्ट फेज, इसके अंदर भी सब फेजेस आता है, we'll be talking about that, right? But at the end of cytokinesis 1 we get these two daughter cells. Can you see? Dyad of cells बोलते हैं इसको, because you are getting two daughter cells. ये जो दो डॉटर सेल्स मिला आप लोग देख सकते हैं, ये मदर सेल से कैसा डिफरेंट है, द क्रोमोसोम नंबर हैव बिकम हाफ, है ना, एज कंपेयर टू द मदर सेल द क्रोमोसोम नंबर हैज बिकम हाफ। अब ये जो दो डॉटर सेल्स हम लोग को मिले हैं, राइट, दे विल सर्व एज द मदर सेल फॉर द अपकमिंग सेल डिवीजन। व्हाट इज द अपकमिंग सेल डिवीजन? द अपकमिंग सेल डिवीजन इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 के लिए दे आर सर्विंग एज द मदर सेल्स। तो इसमें से कोई एक सेल लेंगे हम लोग, ऑब्वियसली दोनों, ये दूसरा के लिए भी ऐसा डुप्लीकेट होगा, लेकिन हम मान लो ये वाला सेल लिए, सपोज हम ये वाला सेल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये सेल का कितना है, n is equals to 2 और 2c, राइट। तो यही वाला सेल मेरा जाएगा और क्या शुरू करेगा बताओ, तो मियोसिस 2 शुरू करेगा। इसलिए मैंने मियोसिस 2 के बगल में क्या लिखा है, n is equals to 2 और 2c, दिख रहा है, n is equals to 2 और 2c, करेक्ट। आई होप पीपल कैन सी हियर, n is equals to 2 और 2c, करेक्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? लेकिन यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू नोटिस समथिंग कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। आप लोग को दिख रहा है ये वर्ड, राइट? देखो, एक सेल डिवीजन और दूसरा सेल डिवीजन के बीच में हमेशा क्या हुआ करता था बताओ तो, इंटरफेज हुआ करता था, राइट। सेल डिवीजन शुरू होने से पहले हमेशा क्या ये क्या होता था, इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर क्या क्या था, G1S और G2, right, wherein the cell is actually preparing for the upcoming cell division. The cell is producing all the different types of proteins, the cell is replicating the DNA and all of that, बहुत सारा चीज कर रहा था, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, मतलब साइटोकाइनेसिस 1 टेक्निकली स्पीकिंग साइटोकाइनेसिस 1 और कार्योकाइनेसिस 2 के बीच में, देखो साइटोकाइनेसिस 1 और कार्योकाइनेसिस 2 के बीच में ये जो इवेंट है, इसको हम लोग इंटरफेज नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्वेश्चन पूछेगा क्यों, why are you calling it interkinesis, and my answer will be very simple, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली G1 के बाद क्या आ रहा है, G2, यहां पे S फेज नहीं है ना, यहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन इज नॉट हैपनिंग, right? All the events of G1 and all the events of G2 are happening, but the events of S are not happening. इसका मतलब बड़ा ही सिंपल सा बात है, इसी के लिए तो तुम देखोगे ना, जितना मैंने डीएनए यहां पे रखा है 2C, उतना ही मैंने डीएनए यहां भी तो रखा है, राइट। अगर तुम स्मार्टली देखो, जितना डीएनए मैंने रखा है 2C, यहां भी 2C अमाउंट ऑफ डीएनए रखा है। देखो अगर यहां पे इंटरफेस के बाद
डीएनए का अमाउंट तो डबल यहाँ पे हो जा रहा था ना। मदर सेल में 2C डीएनए है, लेकिन जब मियोसिस 1 में पहुंचा तो कितना था, 4C डीएनए था, है ना। वाई? बिकॉज यहाँ पे एस फेज था, यहाँ पे एस फेज ही नहीं है, राइट। इसी के लिए ये वाला इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, राइट। वी कॉल इट एज इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस में क्या, G1 के बाद डायरेक्टली G2, करेक्ट, वेरिन द डीएनए इज नॉट रेप्लिकेटेड, राइट। तो यहां पे कौन सा सेल पहुंचा, n इज इक्वल टू 2 और 2C, राइट। Meiosis 2 is just like mitosis. मैं क्यों उसको बोल रहा हूं, why is it just like mitosis, my dear students? Right? Because ये एकदम mitosis की तरह क्या करता है, सेल्स का जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको एकदम इक्वेट करके रखता है। मतलब इसके लिए तो ये मदर सेल है ना, यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2, n is equals to 2। तो ये डॉटर सेल्स के पास भी n is equals to 2 क्रोमोसोम्स रहने देगा, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे n is equals to 2 है, तो यहाँ भी वो n is equals to 2 रहने देगा, है ना। देयर इज एन इक्वेशन बिटवीन द मदर सेल एंड द डॉटर सेल, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस की तरह होता है मियोसिस 2, राइट, वेरिन यहाँ पे द क्रोमोसोम नंबर इज रिमेनिंग द सेम। देखो, द क्रोमोसोम नंबर इज रिमेनिंग द सेम, बट द डीएनए इज बिकमिंग हाफ। डीएनए हाफ हो जाएगा। डीएनए यहाँ पे कितना था भाई, 2C, यहाँ पे डीएनए कितना हो जा रहा है, सारा सेल्स में देखो C, मतलब इसका n is equals to 2 और C, n is equals to 2 और डीएनए C, n is equals to 2 और डीएनए C, यहाँ भी n is equals to 2 और डीएनए C। क्लियर है? तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 4 सेल्स विद n is equals to 2 एंड डीएनए कितना होगा, C। अब ऑब्वियसली ये तो साइटोकाइनेसिस 2 के बाद है, यहाँ पे कार्योकाइनेसिस 2 उससे पहले होगा, राइट, जिसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 एंड देन यू गेट द 4 डिफरेंट सेल्स। एक्चुअली एक सेल से 2 सेल मिलेगा, दूसरा सेल से भी 2 सेल मिलेगा, तो अल्टीमेटली 4 सेल मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही होता है मियोसिस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है कि मैंने P1 प्रोफेज 1 में एक एस्टेरिस्क लगाया था और कहा था आई विल टेल यू समथिंग अबाउट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो होता है ना, वो मियोसिस का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप्स होता है या द लॉन्गेस्ट स्टेप्स होता है। ऐसे भी प्रोफेज तो कार्डियोकाइनेसिस का सबसे लंबा ही स्टेप है, राइट। यहाँ पे कुछ थोड़ा ज्यादा ही लंबा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स अजीब टाइप का एक बिहेवियर दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, प्रोफेज 1 कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट सब फेजेस। स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पे जनरल स्टेप्स तो प्रोफेज का होगा ही, डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस, disappearance of the organelles etc, right, condensation of the chromatid into chromosomes, ये सारा नॉर्मल इवेंट्स तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को क्रोमोसोम का बिहेवियर में भी एक अलग सा इवेंट देखने को मिलेगा। हम लोग हमेशा एसोसिएट करते हैं ना मियोसिस को विथ वेरिएशन, विथ रिकॉम्बिनेशन, है ना, विथ genetic exchange of materials going on between paternal and maternal chromosomes. All these things are going to happen in prophase 1, right? So technically prophase 1 is subdivided into 5 different phases. यहाँ पे students आप लोग देखेंगे leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis, LZPDD। अगर आपको ये LZPDD याद नहीं रहे, है ना, तो हमेशा याद रखना, लाओ जरा पानी दे दो, है ना, लाओ जरा पानी दे दो। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, है ना, लाओ जरा पानी दे दो, LZPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। हम लोग तो ऑब्वियसली ये सारा स्टेजेस के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन दैट इज फॉर द नेक्स्ट क्लास। लेकिन यहां पे याद रखना कि इन दिस पर्टिकुलर पैकाइटीन स्टेज, इन दिस पर्टिकुलर पैकाइटीन स्टेज तुम्हारा क्या होता है, एक्चुअल में द रिकॉम्बिनेशन ऑफ योर डीएनए हैपेंस, है ना, जहां पे पैटर्नल और मैटर्नल कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं पैकाइटीन स्टेज में, है ना। हम इसको बोलते हैं पैकेट्स एक्सचेंज होता है। क्लियर है, राइट? सो ये किसका था, ये प्रोफेज 1 का सब स्टेजेस है, और ये पूछता है तुम्हारे नीट एग्जाम में, है ना, कि ये किस आधार पे डिवाइड किया है। इट इज अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोम के बिहेवियर पे आधारित करके इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर है, राइट? अब आ जाओ ये लास्ट सेक्शन में, मियोसिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन कितना हुआ है बताओ तो। न्यूक्लियस का डिवीजन देखो, कार्योकाइनेसिस 1 एक बार हुआ, यहां पे कार्योकाइनेसिस 2 दूसरी बार हुआ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन कितना हुआ है, 2। अब ये अंडरस्टैंडिंग,
नंबर ऑफ सेल डिविजन कितना हुआ है? 2 बार हुआ है। मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो बार। लेकिन अगर पूछ ले डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन कितना बार हुआ है, भाई वो तो एक ही बार हुआ है ना। डीएनए का डुप्लीकेशन तो सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो भी सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि एस फेज सिर्फ एक ही है। पूरा का पूरा मियोसिस में एस फेज सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस कितना हुआ है? 1। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है जिसके बारे में हम लोग ऑब्वियसली वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन मियोसिस बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, है ना। माइटोसिस तो आपके क्लास 10 में भी था, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास 10 एंड क्लास 11? लेवल तो थोड़ा अप होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का मियोसिस भी सिलेबस में है और यहाँ पे काफी सारा क्वेश्चंस पूछता है। तुमको क्वेश्चंस ऐसे दे देगा कि एक सेल सपोज मान लो जीवन में है ना, उसका मियोसिस 2 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताओ या अमाउंट ऑफ डीएनए बताओ। बोल देगा कि G2 में उसका 15 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए था, तो इस स्टेज में या इस पर्टिकुलर स्टेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा सेल के अंदर, right? So I will help you solve these questions, but for that I want you to do just a small amount of homework. थोड़ा सा होमवर्क है कि जो चार्ट मेरे पीछे दिख रहा है या जो मैंने अभी आपको लेक्चर बताया, आप प्लीज उसको 1-2 बार अच्छे से सुनो बिकॉज दीज नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ तो नहीं है ऐसा नंबर 2 and 2C करके, बिल्कुल भी नहीं बताया है, लेकिन आपको एग्जाम्स में जरूर ऐसा क्वेश्चन देगा। दिया हुआ है पास्ट में बहुत सारा क्वेश्चंस, आगे भी दे सकता है बिकॉज यू नो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर बिकमिंग मोर डिफिकल्ट बाय द डे, राइट। तो इसी के लिए आई एम श्योर आप लोग सारा आंसर्स कर पाएंगे अगर आप लोग ये वाला वीडियो और आने वाला वीडियो मियोसिस का अच्छा से देखेंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अच्छा से देखा। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। If you have any queries, you know the drill. You have to comment in the comment box. I will be happy to help. Keep watching, keep growing, and keep learning. Thank you so much.